فرماتے ہیں کہ جس طرح زمین کے اوپر بارش نازل ہوتی ہے تو زمین کے 3 قسم کے ٹکڑے ہوتے ہیں. بعض زمینیں تو ایسی ہوتی ہیں جو زرخیز ہوتی ہیں, بارش برستی ہے وہ زمین پانی کو جذب کر لیتی ہے, پھر اس زمین سے پھل اور پھول اگتے ہیں, پودے اگتے ہیں, انسان کے لیے نفع کا باعث ہوتے ہیں. زمین کے بعض ٹکڑے ایسے ہوتے ہیں جو گہری کھائیاں ہوتی ہیں, پانی برستا ہے, ان کھائیوں کے اندر پانی جمع ہو جاتا ہے, بعد میں لوگ اسی پانی سے جانوروں کو سیراب کرتے ہیں یا پھر اسی پانی سے زمینوں کو سیراب کرتے ہیں, وہ ڈیم کی شکل میں بن جاتے ہیں. اور بعض زمینیں چھٹیل میدان نہ تو وہ پانی کو جذب کرتی ہیں نہ پانی کو سٹور کرتی ہیں. یہ بدترین ٹکڑا ہوتا ہے زمین کا, یہ بدترین ٹکڑا ہوتا ہے زمین کا. پانی گر پڑتا ہے, بہہ جاتا ہے, ضائع ہو جاتا ہے. ایسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں کے قلوب بھی اس طرح ہی ہیں. بعض کے قلوب کے اوپر جب وحی کی بارش برستی ہے ان کے اندر جذب کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے, وحی کو, اللہ تعالیٰ کے کلام کو, تعلیمات شریعت کو جذب کر لیتے ہیں, پھر ان سے مسائل کا استنباط و استخراج ہوتا ہے, پھر وہ لوگوں کے لیے نافع بن جاتے ہیں. اور بعض قلوب ایسے ہوتے ہیں کہ اوپر سے بارش تو برس رہی ہوتی ہے لیکن قلب کے اندر قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی, تو لہذا ویسی ہی وہ بارش ضائع ہو جاتی ہے, اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. آج لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ پہلے ایک زمانہ تھا جب لوگ بیان کرتے تھے تو ایک ہی بیان تھے, لوگوں کے دل کی دنیا بدل جاتی تھی. آج پتہ نہیں بولنے والوں کی زبان میں کوئی تاثیر نہیں رہی, علماء کے اندر اخلاص نہیں رہا, اس لیے ان کی باتوں کا لوگوں کے اوپر اثر نہیں ہوتا. کسی حد تک آپ کی بات صحیح ہے, ہماری باتوں میں اثر اس لیے نہیں کہ ہمارے اندر اخلاص نہیں ہے, لیکن دوسری پہلو کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے کہ ادھر بھی قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے. گناہوں کی کثرت کی وجہ سے دل کی دھرتی بنجر بن چکی ہے, بارش برستی رہتی ہے, پیالہ الٹا پڑا ہوتا ہے, ایک قطرہ پانی بھی اس کے اندر نہیں جا سکتا. پیالے کو سیدھا تو کر لیں, زمین ایک مرتبہ زرخیز تو بن جائے, اس کے اوپر ہل چلائیں, اللہ اللہ کا ذکر کر کے اس کے اوپر ہل چلائیں, دل کی دھرتی نرم ہو جائے, اوپر سے بارش برسے گی, پانی جذب ہوگا, اندر سے پھل اور پھول اور بوٹے اگیں گے. دیکھ تو لیں. تو یہ دوسرا اثر. اور اس دل کے اوپر گناہ کا تیسرا اثر یہ ہوتا ہے کہ دل سخت ہو جاتا ہے, سخت ہو جاتا ہے. پروردگار ذوالجلال نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک, پھر تمہارے دل سخت ہو گئے. فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ, یہ پتھروں کی طرح سخت ہو گئے, بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ, بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں اللہ رب العزت کے خوف سے پھٹ جاتے ہیں, اندر سے نہریں بہ پڑتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ, بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جب وہ پھٹ جاتے ہیں ان سے تھوڑا پانی بہ پڑتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں پہاڑ کی چوٹی سے اللہ تعالیٰ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. آپ لوگوں نے سنا ہوگا پہاڑی تودا گر پڑا, پہاڑی چٹان گر پڑی, کسی نے پیچھے سے دھکیلا نہیں ہوتا, زلزلہ نہیں آیا ہوتا, ہوا نے نہیں دھکیلا ہوتا, رب ذوالجلال کے خوف سے یہ بڑی بڑی چٹانیں نیچے کو گر پڑتی ہیں. پتھر تو خوف خدا رکھے, لیکن انسانی قلب میں رب ذوالجلال کا خوف نہ ہو تو سمجھنا چاہیے کہ یہ دل یہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ جا رہے تھے تو راستے کے قریب ایک پتھر نظر آیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ حالت منکشف کر دی کہ پتھر رو رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر کے پاس گئے کہ پتھر تو کیوں روتا ہے؟ پتھر نے جواب دیا کہ جہنم کے خوف سے روتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ تو شریعت کے مکلف بھی نہیں ہیں, آپ کا تو حساب کتاب بھی نہیں ہوگا, تو آپ کیوں روتے ہیں؟ تو پتھر نے جواب دیا کہ سنا ہے جہنم کا ایندھن یہ پتھر ہوں گے, ڈر لگتا ہے کہ ایندھن کے طور پہ اللہ مجھے جہنم میں نہ ڈال دے, اس لیے رو رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اللہ یہ پتھر آپ کے خوف سے رو رہا ہے, اس کو جہنم کے عذاب سے مأمون کر دے.
परवरदिगार ज़ुल-जलाल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और फरमाया कि मैं पत्थर को जहन्नम में नहीं डालूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर को खुशखबरी सुनाई कि आपको जहन्नम की आग से निजात मिल गई, आप मुतमईन हो जाएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे चले गए। चंद दिनों के बाद जब वापस आ रहे थे, दोबारा देखा वही पत्थर फिर रो रहा है। पूछा, पत्थर अब क्यों रोता है? अब तो आपको जहन्नम की आग से निजात मिल गई। तो पत्थर ने जवाब दिया, अल्लाह के कलीम, जिस रोने की बरकत से परवरदिगार ने मुझे जहन्नम से बचाया है, भला उस रोने को मैं कहां छोड़ सकता हूं? ये रोना ही तो मेरा बाबरकत अमल है, जिसकी वजह से मैं बच गया हूं, इसको मैं कहां छोड़ सकता हूं? पत्थरों की ये हालत। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारे कुलूब सख्त हो चुके हैं। जितना कुरान आज हम सुनते हैं, दर्स कुरान सुनते हैं, दर्स हदीस सुनते हैं, जो कुछ भी हम सुनते हैं हमारे ऊपर असर नहीं होता। हालांकि परवरदिगार तो फरमाते हैं, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ के ऊपर नाज़िल कर देते तो फिर आप देख लेते कि ये पहाड़ मेरे खौफ से दब जाता, ये रेजा रेजा हो जाता। ये पहाड़ भी कुरान का बोझ बर्दाश्त न करता। ऐ इंसान, तेरा दिल कितना सख्त हो चुका है। सुबह शाम तेरे ऊपर कुरानी आयात की तिलावत होती रहती है, लेकिन आपके कल्ब के ऊपर जर्रा बराबर असर नहीं होता। दिल सख्त हो गया। अच्छा, दिल के ऊपर गुनाहों का छोटा असर कुरान अजीम शान से परवरदिगार ने फरमाया, खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह ने इनके दिलों के ऊपर मोहर लगा दी है। दिल के अंदर हक बात नहीं जा सकती। दिल बाहर से गिलाफ दिल के ऊपर छड़ जाता है, पर्दे पे पर्दा दिल के ऊपर छड़ जाता है। बंदे को हक नजर नहीं आता, बातिल बड़ा नजर आता है। हक में उसको हजार अयूब नजर आते हैं, बातिल के निजाम में उसको खूबियां ही खूबियां नजर आती हैं। किसी भी बेचारे मुतासिर एक नौजवान से पूछे ना, जो गैरों से मुतासिर हो, यूरोप से मुतासिर हो, आप उसको दीन की बात करें, आप उसको इस्लाम की बात करें, कहते मुझे नहीं पता कि ये नमाज क्यों लाजिम की गई है, इसमें क्या फायदा है, भाई ये सुन्नतों में क्या फायदा है, इस दाढ़ी के अंदर क्या फायदा है। एतराजात ही एतराजात, तनकीद ही तनकीद। उससे आप यूरोप की निजाम की बात करें, आप उससे मगरिब के अंधेरों की बात करें, वो कहते हैं क्या बात है, क्या रोशनी है, क्या कमाल है उन लोगों का। वहां तो उनको खूबियां नजर आती हैं, इधर उनको तनकीद खामियां नजर आती हैं। परवरदिगार ज़ुल-जलाल ने फरमाया, फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला जिसको हिदायत देने का इरादा कर लेता है, उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है। शरीयत का हर हुक्म उसको अच्छा लगता है, तबीयत शरीयत के मुताबिक बन जाती है, मिजाज शरीयत के आयन मुताबिक बन जाता है। बगैर किसी चूनो चरा के शरीयत के हर हुक्म को कबूल करने के लिए तैयार होता है। किसी किस्म की खामी, किसी किस्म का आयब शरीयत की तालीमात में उसको नजर नहीं आता। रब्बुल जलाल ने खैर का इरादा किया होता है। फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम वमन युरिद अन युदिल्लहु। जिसको परवरदिगार गुमराह करने का इरादा कर दे, उसको उसके नफ्स और शैतान के हवाले कर दे, अपने आप से दूर कर दे, दुत्कार दे। फमन युरिद अन युदिल्लहु यजअल सदरहु दय्यका। अल्लाह ताला उसके सीने को तंग कर देता है, हरजन टाइट कर देता है, और दीन के ऊपर अमल करना उसके लिए इतना मुश्किल होता है कि अन्नमा यस्अदु फिस समा, गोया कि आसमान के ऊपर चढ़ना जितना बंदे के लिए मुश्किल होता है। दुनिया की खातिर, मुर्दार बदबूदार दुनिया की खातिर 8 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे जापानी मशीन की तरह भाग सकता है, लेकिन रब्बुल जलाल को राजी करने के लिए 2 मरतबा जमीन के ऊपर पेशानी नहीं रख सकता। दीन के ऊपर अमल करना मुश्किल, और बाकी मशागिल के लिए, बाकी सरगर्मियों के लिए बड़ा चुस्त और चालाक होता है। जरा नौजवानों से पूछे ना, गेंद कहीं जा रही हो तो गेंद को पकड़ने के लिए कैसे उछलते कूदते हैं। कभी मैदानों में देखो, ग्राउंड में देखो, गेंद को पकड़ने के लिए कैसे उछलते कूदते हैं।
लेकिन जब नमाज का वक्त होता है तो बेचारे से वो हिम्मत तलब हो जाती है कि वो अल्लाह को राजी करने के लिए कम से कम 2 मरतबा जमीन के ऊपर सर रखे। तो दीन के ऊपर अमल करना मुश्किल और बाकी सरगर्मियां बंदे के लिए आसान हो जाती हैं। जी, ये तो 4 तरह के असरात बयान किए जो दिल के ऊपर पड़ते हैं गुनाहों के। अब हम अपने दिल को कैसे पाक कर सकते हैं, दिल की धरती को हम कैसे साफ कर सकते हैं, इस मुर्दा दिल को हम कैसे जिंदा कर सकते हैं, इस सख्त दिल को हम कैसे नरमा सकते हैं, इस सोए हुए दिल को हम कैसे बेदार कर सकते हैं, ये पॉइंट अब रह गया। अब आप लोग बताएं, अगर आप लोगों का टाइम काफी लिया मैंने तो फिर मैं दुआ कर लेता हूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये मौजू बयान कर दूं तो मैं मुख्तसरन ये मौजू भी बयान कर लेता हूं। समझ लें कि रब्बुल जलाल ने जहां इंसान के जाहिर की जरूरियात के लिए दुनिया में मुकम्मल इंतजाम किया हुआ है, इस जाहिर का लिबास, जाहिर का खाना, जाहिर का इलाज, जाहिर की दवा, जाहिर की ग़िज़ा, ये सब कुछ रब्बुल जलाल ने इस जमीन के अंदर वाफर मिकदार में रखा हुआ है। इसी तरह इंसानी क़ुलूब के लिए अगर दवा की जरूरत है तो रब्बुल जलाल ने उसका भी इंतजाम किया है। अगर इंसानी क़ल्ब के लिए ग़िज़ा की जरूरत है उसका भी इंतजाम किया है। अगर इंसानी क़ल्ब के लिए लिबास की जरूरत है उसका भी रब्बुल जलाल ने इंतजाम किया है। भाई, आपको जब जाहिर के लिए लिबास चाहिए होता है, आप बाजार में जाते हैं और बाजार में दुकानदार से कपड़ा खरीदते हैं, फिर सिलाई करते हैं तो जाहिर को पहनाते हैं, बंदे का जाहिर मुज़य्यन हो जाता है। ऐसी ही अगर आपको दिल के लिए लिबास चाहिए, दिल के लिए लिबास चाहिए तो परवरदिगार ने फरमाया कि हाँ, दिल का भी एक लिबास है, व लिबास तक़वा ज़ालिका खैर। दिल का लिबास ये तक़वा का लिबास है, ये बेहतरीन लिबास है। अब आप दुनिया में जाहिर के लिबास को खरीदने के लिए बाजार जाते हैं, कपड़े वाले से राब्ता करते हैं, ऐसे ही आप अपने दिल को तक़वा का लिबास पहनाने की कोशिश करते हैं तो आपको तक़वे वालों से राब्ता करना पड़ेगा, आपको मुत्तकी लोगों से राब्ता करना पड़ेगा। परवरदिगार ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ईमान वालों तक़वा इख्तियार करो। तक़वा इख्तियार करने का आसान तरीका यह है कि तुम तक़वा वालों के साथ अपने आप को नत्थी कर लो, अपने आप को तक़वा वालों के साथ जोड़ दो। सादिकीन का लफ्ज़ बोला है, मुत्तकीन का नहीं बोला। शायद उलमा तलबा को ज़हन में ये इश्काल पेश आए कि आपने सादिकीन का तर्जुमा मुत्तकीन से कैसे कर दिया। कुरान में तो सादिकीन का लफ्ज़ आया है, वकूनू मअस सादिकीन। आप तो तक़वा की बात करते हैं, कुरान तो कहता है कि सादिकीन के साथ हो जाओ। तो भाई कुरान ही तो कहता है कि वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। जो सच्चाई लेके आया, सच्चाई की तस्दीक की, वही लोग मुत्तकी होते हैं। तो सादिकून और मुत्तकून एक होते हैं। तो हमें जाहिर को लिबास चाहिए होता है, हम बाजार जाते हैं, कपड़े वालों से राब्ता करते हैं। हमें दिल को तक़वा का लिबास चाहिए होता है, हमें तक़वा वालों से राब्ता करना पड़ेगा। हजरत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब दुनिया की जमीन नापाक हो जाए, उसको पाक करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि इस जमीन के ऊपर सूरज की शुआएं पड़ें, और सूरज की शुआएं इतनी शिद्दत से पड़ें कि नजासत जल जाए, जमीन के ऊपर से असर खत्म हो जाए, ये जमीन पाक हो जाएगी। और दूसरा तरीका यह कि जमीन के ऊपर बारिश बरसे, बारिश इतनी कसरत से बरसे कि नजासत को पानी अपने साथ बहा के ले जाए, जमीन पाक हो जाएगी। दुनिया की जमीन को पाक करने के 2 तरीके, सूरज की शुआएं नजासत को जला दें, बारिश का पानी नजासत को बहा दे, जमीन पाक हो जाएगी। ऐसी ही वो फरमाते हैं जब ये दिल की धरती गंदी हो जाए, इसको भी पाक करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये कि बंदा जिक्र की कसरत करे, जिक्र की कसरत से अनवारात की बारिश बरसती है और ये बारिश दिल के ऊपर से जंग को धो देती है, नजासत के असरात धुल जाते हैं, दिल चमक उठता है, ये साफ सुथरा बन जाता है। लिकुल्लि शैइन सिक़ालतुन व सिक़ालतुल क़ुलूब ज़िक्रुल्लाह, हर चीज को चमकाने की पालिश होती है, दिल को चमकाने की पालिश ये रब्बुल जलाल की याद है। तो कसरत जिक्र से
दिल चमक उठता है, दिल के ऊपर से गुनाहों का जंग धुल जाता है। और ये बात भी याद रखें कि इस दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत को बसाने के लिए जिक्रुल्लाह नुस्खा अक्सीर है। लोग ये कहते हैं कि दिल में अल्लाह की मोहब्बत नहीं है, भाई जिक्र की कसरत करें, फिर देख लेना दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत कैसे समा जाती है। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं नौजवान था, एक मरतबा एक अल्लाह वाले से मुलाकात हुई। मैंने अर्ज किया, हजरत दिल में अल्लाह की मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत कैसे आएगी? हजरत ने फरमाया, अशरफ अली हथेलियों को रगड़ो। मैंने रगड़ा, पूछा क्या महसूस करते हो? मैंने कहा हरारत महसूस करता हूं। फरमाया और रगड़ो। मैंने और रगड़ा, पूछा अब क्या महसूस करते हो? मैंने कहा हरारत बहुत शदीद हो गई। फरमाया और रगड़ो। मैंने और रगड़ा, पूछा अब क्या महसूस करते हो? मैंने अर्ज किया, हजरत अब तो मुझे यूं महसूस होता है जैसा कि हथेलियों को आग लगी हुई है। फरमाया, अशरफ अली हथेली को हथेली से रगड़ते हो, हरारत पैदा हो जाती है। ऐसी ही जब इस दिल के ऊपर अल्लाह के नाम की जरब लगाओगे, दिल को रगड़ा लगेगा, फिर जरब लगाओगे, फिर रगड़ा लगेगा। बार बार जब ये दिल के ऊपर रगड़े लगेंगे, दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत की हरारत पैदा हो जाएगी। जिक्र की कसरत करें, दिल की धरती पाक हो जाएगी। जब ये गंदा बर्तन पाक हो जाएगा तो रब्बी जुल जलाल की जानिब से मोहब्बत का वरूद होगा। याद रखें, गंदे बर्तन में कोई दूध नहीं डालता। दूध डालने के लिए पहले बर्तन को धोना पड़ता है। तो रब्बी जुल जलाल की मोहब्बत को दिल में बसाने के लिए पहले इस दिल को साफ करना पड़ता है, दिल को धोना पड़ता है, दिल को चमकाना पड़ता है। तो जिक्रुल्लाह की कसरत से दिल की दुनिया आबाद हो जाती है, गाफिल दिल बेदार हो जाता है। और दूसरा तरीका, जिस तरह सूरज की शुआएं जमीन को पाक कर देती हैं, इस तरह अल्लाह वालों की निगाहों की शुआएं ये दिल की जमीन को पाक कर देती हैं। ऊपर से नजासत जल जाती है, बंदे का दिल चमक उठता है। जिस कल्ब की आहों ने दिल फूंक दिए लाखों, जिस कल्ब की आहों ने दिल फूंक दिए लाखों, उस कल्ब में या अल्लाह की आग भरी होगी। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, जिला देती है शमा कोहना को मौजे नफ्सुन की। जिला कहते हैं रोशनी को, शमा कोहना पुरानी शमा, पुराना शमा। जिला देती है शमा कोहना को मौजे नफ्सुन की। खुदाया क्या छुपा होता है अहले दिल की सीनों में। न पूछ इन खिरका पोशों का, इरादत हो तो देख उनको। यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की। तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की। नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में। अल्लाह वालों की निगाहों में ऐसी तासीर होती है, किसी के ऊपर पड़ती है, दिल की दुनिया में इनकलाब बर्पा हो जाता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल ऐनु हक़्क़ुन, आंख की तासीर हक है, आंख की तासीर हक है। हुजूर ने फरमाया है, नजर बद लग जाती है, बच्चे को नजर लगे, बच्चा बीमार हो जाए, जानवर को नजर लगे, जानवर बीमार हो जाए, गाड़ी को नजर लगे, गाड़ी खराब हो जाए। अगर नजर बद लग सकती है और उस चीज के ऊपर बुरे असरात पड़ सकते हैं, तो नजर नेक क्यों नहीं लग सकती? कभी अल्लाह वालों की निगाहों में आ जाओ, देख लेना कैसे दिल की दुनिया बदलती है। आप में से हर बंदा चाहता है कि मैं नेक बन जाऊं, मैं अल्लाह का मुकर्रब बन जाऊं, मैं गुनाहों से छुटकारा पालूं। दिल की वीरान बस्ती को आबाद करने के लिए, दिल की उजड़ी बस्ती को बसाने के लिए अल्लाह वालों की निगाहों में बंदा आ जाए, बंदे की दिल की दुनिया बदल जाती है। खिरद के पास खबर के सिवा कुछ और नहीं, खिरद के पास खबर के सिवा कुछ और नहीं, तेरा इलाज नजर के सिवा कुछ और नहीं। लोग कहते हैं अल्लाह तुझे नजर से बचाए, हम कहते हैं अल्लाह करे तुझे किसी की नजर लग जाए। नजर लगेगी फिर देख लेना कैसे बंदे का बेड़ा पार हो जाता है। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, किसी अल्लाह वाले ने एक मस्जिद में एतिकाफ किया और काफी जमाने तक एतिकाफ किया। तन्हाई थी, खलवत थी, जिक्र की कसरत थी। जब वो पहली मर्तबा मस्जिद से बाहर निकले तो इत्तेफाक से
सामने से कुत्ता गुजर रहा था, कुत्ते के ऊपर नजर पड़ गई। जो कुत्ते पे नजर पड़ी तो कुत्ते के ऊपर भी उस तवज्जो का असर पड़ गया। हालत ये थी कि कुत्ता जहां जहां जाता था बाकी कुत्ते उसके पीछे पीछे जाया करते थे, उससे आगे कोई कुत्ता नहीं जाता था। और जहां कहीं वो खड़ा हो जाता था तो बाकी कुत्ते उसके इर्द गिर्द हल्का बांध के खड़े हो जाते थे। अल्लाह वालों की निगाह किसी कुत्ते के ऊपर पड़ जाए, कुत्ते के अंदर भी तब्दीली पैदा कर दे, तो इंसान जो अशरफुल मखलूकात है, जिसके सीने के अंदर ईमान की चंगारी मौजूद है, अगरचे वो गुनाहों की राख तले दबी हुई है, वो माहौल की जुल्मत की वजह से अपनी हरारत नहीं दिखा सकती, लेकिन चंगारी मौजूद तो है ना। कलमा तो हम पढ़ते हैं, कभी कभार अल्लाह के घर में हाजिरी तो हम देते हैं, इस बात की दलील है कि ये चंगारी मौजूद है। अब इस चंगारी को भड़काने के लिए, इसको दोबारा रोशन करने के लिए हमें अल्लाह वालों की मजलिस में जाना पड़ेगा, अल्लाह वालों से हमें ताल्लुक जोड़ना पड़ेगा। उनके ताल्लुक की निस्बत से फिर बंदे को ये कैफियत नसीब हो जाती है। अल्लाह ताला हम सबको समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।